پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند جو شفیق اور مہربان ہیں، ان کی مہربانی اور ان کی شفقت کو یاد کرتے ہوئے آج آپ تمام سامعین کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں، اور اس وقت کے لیے جو خداوند نے مجھے بطور بونس بخشا ہے، خداوند کا شکر کرتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آج جو کچھ میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا، پاک روح میری اور آپ کی ضرورت کے عین مطابق ہمیں برکت بخشے گا۔ آپ کی بھرپور توجہ چاہیے، کیونکہ ہم زبور 106 کی 13 آیت سے لے کر 17 آیت تک ہم آج بات کریں گے، اور اس میں خدا کے خلاف اسرائیل کی بغاوت، اور ہم اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم ان آیات پر غور و خوض کریں گے۔ یاد کیجئے کہ جب زبور 105 پر بات کر رہے تھے تو آپ میں سے کچھ کو یقیناً یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ زبور 105 کے ساتھ 106 زبور کا ہونا یہ غیر معمولی بات ہے اور بہت ہی اہم ترین ہے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، کیونکہ زبور 105 میں ہم نے باہم مل کر دیکھا کہ خدا کی کس قدر مہربانی اور شفقت بنی اسرائیل پر تھی، خدا نے کیسے کیسے ان کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، اور ان کے بیابان کے سفر میں، ملک کنعان میں، ایون سرزمین مصر میں بھی خدا نے ان کی زندگی میں بڑے بڑے چمتکار، اچنبے اور معجزات، نشان اور عجیب کام کیے ہیں۔ اور زبور 105 میں ان تمام کاموں کو یاد کیا جاتا اور یہوہ پاک خدا کے حضور شکر گزاری کی جاتی اور اس کی حمد کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس سکے کی دوسری طرف دیکھتے ہیں، یعنی زبور 106 کی بات کرتا ہوں، تو زبور نویس جو کوئی بھی تھا، پاک روح کی تحریک سے یہ زبور لکھا گیا، لیکن اس میں ہمیں اس بات سے پردہ کشائی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ اسرائیل پر خدا کی کتنی زیادہ مہربانیاں تھیں، کیسے اس کی شفقت اور اس کا رحم اور اس کا قدرت والا ہاتھ ان پر اور ان کے ساتھ تھا، اور خدا خود ان کے آگے آگے ہو چلا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ خدا کی ان تمام بھلائیوں کو، نیکیوں کو، معجزات کو اور عجیب کاموں کو اسرائیل بھول گیا۔ ایز اے نیشن میں بات کرتا ہوں، قوم کے اعتبار سے، اور یوں انہوں نے خدائے بزرگ و برتر یہوہ خدا مسیح یسوع میں آج جو میرا اور آپ کا آسمانی پتا ہے، اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے۔ کیا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی کوئی سوچنے کی بات یا نقطہ ہے؟
जरा गौर फरमाइएगा। मोमनो, खुदा किस तरह मुझे और आपको गुनाह के मिस्र से निकालकर उस सरजमीन में लेकर आया है जहां पर मुकम्मल तौर पर रास्तबाजी है, और हम उस मुल्क के मुंतजर हैं जहां खुदाबंद की पाक और मुकद्दस हजूरी होगी और गुनाह और मौत और आंसुओं का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका होगा। लेकिन इस दौरान ये जो कुछ खुदा की मेहरबानियां और उसकी शफकत मुझ पर और आप पर रही, मिस्र से निकालकर आज की डेट तक जो कुछ खुदा ने मुझ पर और आप पर किया, ज़बूर 103 कई बार मैं कहता हूं, उसकी बख्शिशों और उसकी रहमतों और उसके अजीब कामों को गिनो, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओ दियानो, तू कह ऐ मेरी जान, मुबारक खुदा है। लेकिन देखना यह है कि हम गवाहियां भी देते हैं कि खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, वो किस कदर अजीम खुदा है, उसने कैसे मुझे तारीकी से निकाला और नूर और उजाले में लेकर आया। मैं कहां पर था, मजबला पर से उसने उठाया और अपने साथ तख्त पर बैठाया। लेकिन देखना यह है कि इस्राइल ये सब कुछ होने के बावजूद बागी हुआ और खुदा के आईन और शरीयत पर पूरा ना उतरा, गुनाह किया। मेरी और आपकी आज क्या हालत है? हम इस्राइल के बारे में तो ये बात कर रहे हैं कि वो बागी हुए, नाफरमान हुए, खुदा के खिलाफ गुनाह किया, और बरस गुजर गए ये कहते हुए फलां भाई ने इंज कीता, फलां बहन ने इंज कीता, फलां मुंडे ने ते फलां कुड़ी ने। ओ भलिया लोका, अपने आप ते भी ते वेख। मुझे और आपको आज पाकरू ये कह रहा है कि तुम अपने आप को भी तो देखो, तुम में कहीं कोई बागियाना पन तो नहीं पाया जाता। खुदा की तमाम मेहरबानियों और उसके शफीक होने का मजा चखने के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं जन्ने लाया गली ओदे ना टोर चली। आप मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे को देखकर शायद हंस रहे हो। काश के खुदा का रूह मुझे और आपको मलामत करे कि यकीनन मेरी जिंदगी में ऐसा है। सोचने का मकाम है। हम सब के लिए अपने आप पर सोचने का मकाम है कि हम इकरार करते हैं कि ऐ खुदावंद, हम आपके हुजूर जैसे आप चाहते थे कि मैं चलूं, मैं नाकाम रहा, और मैं फिर से एक नए अज़्म रासिख के साथ, यानी पुख्ता मुसम्मम इरादा के साथ आपके पीछे हो लेता हूं। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किया और उसने किया और उसने किया, मैं दूध नाल तोलिया होया वा। नो, यही तो बात खुदा के कलाम में मेरे और आपके सीखने के लिए है कि हम दूसरों पर निगाहें जमाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि मैं कितना पानी में हूं।
یہ ہے خدا کے کلام کے سیکھنے کے پیچھے راز۔ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں نئی پیدائش کے تجربہ کے بعد، پھر بھی ہم وہ گنہگار ہوتے ہیں جو خدا کے فضل کے وسیلہ سے بچے ہیں، اور پھر ہم گناہ جیسے مسیح کو پانے سے پہلے ہم کرتے تھے اس کی نسبت اب گناہ ہماری زندگی میں کم اور کم اور کم اور کم اور کم اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں بالکل پرفیکٹ اور کامل ہو گیا ہوں، ورنہ تو تم خدا ہو بھائی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگ آج اس دنیا میں اس غلط فہمی کے تحت اپنا جیون گزار رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دوسروں پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ کی بابت سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد کیجئے، اسرائیل نافرمان تو رہا، لیکن اس کے باوجود گزرے کل آیت 8 میں آپ سیکھ چکے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا۔ خدا کی مہربانی اور شفقت کا مزہ کیسا ہے؟ تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ خدا نے اگر آج تک مجھے اور آپ کو بچایا ہوا ہے تو ہم بے مقصد نہیں ہیں، صرف ٹکر کھانے کے لیے، ٹیڈ پالنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہے کہ خدا ہمارے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ یہ ہے وہ اہم ترین بات جو خداوند کے پاک کلام میں ہم مل کر اکٹھے سیکھتے ہیں۔ اب آیت 13 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 106 زبور اور اس کی 13 آیت۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا۔ بہت جلد خدا کے ان عجیب کاموں کو بھول گئے اور خدا کی طرف سے خاص مشورت یعنی صلاح، خدا کی طرف سے نصیحت کی انتظار نہ کی، جذباتی ہو گئے، جلد باز ہو گئے، اور جو من نے کہا وہی کیا ہے۔ اس آیت کے مطابق خدا کے کاموں کی تعریف تو کی گئی ہے۔ آیت 12 میں ہم نے دیکھا، جب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا تو کیا ہوا؟ اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ ایک چشمہ لیکن 2 طرح کے پانی۔ یہاں پر خدا کی مہربانیوں کا جب یقین کیا تو خدا کی حمد کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں خدا کے احسانات کو، اور خدا کی مشورت، خدا سے ایڈوائس اور نصیحت نہیں پاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ سوچنا ہے۔ خدا کے احسانات اور خدا کی مہربانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، میں بھی اپنی دعائیا درخواست
अपने भाइयों और बहनों को देता हूं और वो मेरे लिए दुआ करते हैं। आप में से भी बहुत सारे मुझे नहीं बताते लेकिन मेरे लिए दुआ करते हैं और मुझे जरूरत भी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, कर्जदार हूंगा अगर आप मेरे लिए दुआ करते रहें कंटिन्यूअसली। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि जब हम इंतहाई कर्ब और दुखों के टनल में से गुजरते हैं, उस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो तो हमें याद रहती है, आय 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 आय। लेकिन जो कुछ माजी में खुदा ने हमारे जीवन में किया, पता नहीं हम उसको भूल जाते हैं। हमारा हाल हमारे माजी पर गालिब आ जाता है जो दुरुस्त नहीं है। हमें यह याद रखने की जरूरत है, मुझे भी और आपको भी मेरे भाई और मेरी बहन, कि जिस खुदा ने माजी में मुझे प्रोटेक्ट किया, हालेलुया, वो जिंदा है। जिसने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, वो हमारे साथ है। वो आज भी अगर उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी हो तो हमें बचाएगा और हमें छुड़ाएगा। लेकिन दूसरी बात, इस आयत के मुताबिक, 13 आयत के मुताबिक, हम खुदा के कामों को जल्द किया और देर किया कभी ना भूलें। लेकिन दूसरी बात ये, उन्होंने, इसराइल ने खुदा से मशवरत का इंतजार न किया। क्या मतलब है? पॉसिबल है कि उन्होंने खुदा के हुजूर खेमा इज्तिमा में, बाद में हैकल में भी जब कभी पूछे होंगे, खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद किए होंगे। मुमकिन है खुदा ने यूं बादल में से होकर जवाब दिया हो, पॉसिबल है टाइम लगा हो। आज की दुनिया में भी ऐसे ही है। बाज़ौकात खुदा के हुजूर हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, दूसरों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, लेकिन खुदा पूरा हफ्ता और फिर एक महीना, फिर एक साल, शायद 4 साल, 5 साल, शायद 10 साल, शायद इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड में उसी हालत में अय्यूब तुझे रहने देता है ताकि तेरे ईमान का इम्तिहान हो। लेकिन अफसोस कि इसराइल की खुदा से मशवरत न लेने की रूह आज हम में से बहुतेरों में पाई जाती है। हम खुदा की तरफ से जवाब का इंतजार नहीं करते। यहां लिखा है उन्होंने खुदा की मशवरत का इंतजार ना किया। असी कहने ऐसे वेले मेरा काम बन जाए, ते खुदा साडा नौकर नहीं लगा कि ऐसे वेले काम कर दे। वो मेरी और आपकी भलाई चाहता है और वो जानता है कौन से वक्त पर किसको क्या देना है। काश के मैं और आप सिर्फ ये गाने वाले ना हूं, मैं फजल देना लास रख के यह वादी करदा सा इंतजारी, ते मोए कर देने इंतजार। काश के हम वो तोते ना हूं जो होंठों से उसकी ताजीम करते हैं। काश के हम दिल से गाएं, ऐ खुदा मैं सब्र के साथ इंतजार करता हूं और करती हूं तेरी तरफ से दुआ के जवाब का। और जब इंतजार नहीं ना होता तो फिर क्या होता है? गैर माबूदा दे नाल अटियां सटियां लाउंदे जे लोग। समझ रहे हैं?
लेकिन कलाम कहता है गैरां दे नाल बनदे कौन करार हुन जेड़े उन्हां दे दुख सदा वदन गे बोतेरे। खुदा ने अगर भट्टी में हमें लगाया है तो उसका खास मकसद है पूरा होने दे, और खुदा से मैं और आप मशवरत तलब करें कि वो मुझसे और आप से क्या चाहता है और उसके एहसानात को भूले नहीं। आयत 14 किताब मुकद्दस में लिखा है बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स करना से मुराद लालच करना है। हरीस कहते हैं लालची को। उन्होंने लालच किया और सहरा में खुदा को आजमाया, रेगिस्तान बियाबान में लालच भी किया और खुदा को उन्होंने आजमाया भी। जबूर 78 आपकी खिदमत में सिर्फ एक आयत रखूंगा वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए। 78 जबूर की 18 लिखा है और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग कर अपने दिल में खुदा को आजमाया। उन्होंने बल्कि 17 आयत में तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग कर अपने दिल में खुदा को आजमाया। सोचना है गैर माबूदों के साथ भी दोस्तियां गाड़ी, उनकी कुर्बानियां भी खाने लगे और वो काम जो शरा की मुखालफत है वो काम भी करने लगे और गैर कौमों के साथ रिश्ते और वाबत कायम करने लगे और वो करने लगे जो सदूम और अमूरा में होता रहा। जरा सोचना है। एक बात तो ये कि आसमानी कनान तक पहुंचने से पहले मुझे और आपको बियाबान में से होकर गुजरना जरूरी है। आसमानी कनान में पहुंचने से पहले मुझे और आपको इस बियाबान में से होकर गुजरना जरूरी है। कहीं खुदा को आजमाते तो नहीं हम, या आजमा कर देखा है कि वो वफादार खुदा है और इस ईमान के साथ जी रहे हैं कि वो आइंदा भी मेरे साथ वफादार रहेगा। और कहीं इस दुनिया के बियाबान में आसमानी कनान तक पहुंचने से पहले पहले हम में कोई हिर्स, कोई लालच की रूह तो नहीं है। अमीर अमीर होता चला जाता, खादम भी अपना घर बनाता चला जाता, प्रॉपर्टी, चर्च बिल्डिंग, लेकिन कलीसिया का क्या हाल है जरा सोचना है। यह गुर्बत रूहानी भी है और दुनियावी भी है। लेकिन याद रखने की बात है अगर हम इस दुनिया में खूब अमीर होते चले जाते हैं, याद रखें कि कहीं रूहानी तौर पर गरीब ना हो जाए, क्योंकि जब लालच और हिर्स की रूह आती है तो गुर्बत और मफलसी स्पिरिचुअली मेरे और आपके गले को आ दबाती है। सोचना है इस बात पर। आयत 15 कलाम मुकद्दस में लिखा है, सो उसने उनकी मुरादें तो पूरी कर दी। जरा अल्फाज पर गौर कीजिएगा।
सो उसने उनकी मुरादें तो पूरी कर दी, उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। एक बार फिर, सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। यानी बात तो फिर उनकी उसने मानी, कैसे मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन सबक सिखा दिया कि तुम जो कुछ चाहते थे वो क्या था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाज औकात, शायद चंद दिन पहले भी सैटरडे को चंद अजीजों में बैठकर बात हो रही थी कि बाज औकात बच्चा जिद करता है, और जिद ये कि मैंने इस माचिस के साथ आग दिया सलाई के जरिया लगानी ही लगानी है। हम मना करते हैं, माचिस ले लेते हैं, फिर लेता है, फिर उससे लेते हैं, फिर उसने तीली निकाली होती है, फिर वो रगड़ रहा होता है, फिर हम कहते हैं जरा करन दे थोड़ी देर वास्ते, हम पास बैठे हैं, जलने नहीं देंगे लेकिन करने दो। और जब वो दिया सलाई रगड़ता है, आग निकलती है और गरमाइश पहुंचती है और कहता है आई 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 आई। बाज़ौकात हम सबक सीखने के लिए ऐसा होने देते हैं। खुदा ने बनी इसराइल की मुराद पूरी तो कर दी खेड़ माचिस नाल लेकिन उसने उनको सबक भी सिखाया है। बाज़ौकात हम अपनी जिद करते हैं खुदा बाप के साथ, अपनी मनमानी, अपना हिर्स, अपनी लालच के तहत, मैं ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। खुदा जवाब तो देता है लेकिन बाज़ौकात जवाब ना में होता है, लेकिन हम ये जवाब कबूल करना नहीं चाहते, हम यस चाहते हैं। लेकिन खुदा चाहता है, जानता है कि मेरे लिए और आपके लिए भला क्या है। और जब हम नहीं ना मानते, कट्टे वाली जिद ला के बह जाने, ते रब कहता है ठीक है, फिर कर ले, तू आप ही खता खाएगा, कर ले मनमानी। रोमियो पहला बाब और दूसरा बाब, अभी नहीं बाद में आप जरूर देखिएगा, वहां लिखा है फिर खुदा ने भी उनको उनकी ख्वाहिशों के हवाला कर दिया, जाओ कर दे फिरो, नहीं बाज आंदे थे। इसराइल में भी वो जो बागियाना पन इख्तियार कर रहे थे, खुदा ने उनको भी यही कहा कि जाओ और जो करना है करो। और ये जो हिर्स और लालच और बागियाना पन की बात है, अगर आपके पास वक्त हो, चूंकि आप बाइबल स्टडी में हैं, ये कोई लेक्चर नहीं है, आप पेन और पेंसिल आपके पास होगी, अगर आप गिनती 11 बाब अपने पास नोट कर लें, आज उसको तलावत करें, और कल अगर गिनती 16 बाब तलावत करें। काश के मैं 31-32 आयात की तलावत करता, लेकिन वक्त नहीं है। गिनती 11 बाब और गिनती 16 बाब, आपको पता चलेगा कि उनका हिर्स और लालच क्या था और उसका नतीजा क्या निकला। मुशर्रफ बेटा बाप से आखिरकार अपना हिस्सा मांग, मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं कितनी बार मुशर्रफ ने अपने बाप को कहा होगा, अब्बा दे दे मेरा हिस्सा, दे दे मेरा हिस्सा, दे दे मेरा हिस्सा, दे दे मेरा हिस्सा। और आखिरकार शायद बाप ने, वहां नहीं लिखा, मेरा ख्याल है, और आखिरकार बाप ने उसको कहा होगा अच्छा ठीक है जा, लेकिन आएगा ऐसे खुरलीते वापस, ऐसे किलेते वापस आओ नहीं। और आप जानते हैं कि वो मुशर्रफ गया, जो मांगा उसको दिया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला आप जानते हैं। आयत 16, उन्होंने खैमा गाह में मूसा पर और खुदाबंद के मुकद्दस मर्द हारून
पर हसद किया। किस किस पर? मूसा पर खैमागाह में, और हारून पर हसद किया। जेलसी, सड़ियल रूह। और इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। गिनती 11 और गिनती 16 में इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आप देखते हैं खुदा ने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि इसराइल ने मेरे खादम मूसा और हारून के साथ क्या किया। इट इज रिकॉर्डेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। उसने रिकॉर्ड रखा हुआ है यहां पर। और जरा देखिए कि कहीं हम भी खुदा के खुदाम, भले वो जैसे भी हैं, कहीं उन पर क्रिटिसाइज या तनकीद तो नहीं करते, कहीं उनकी बदगोइयां और बदबुरियां तो नहीं करते। हसद और जेलस की रूह तो हम में नहीं है। हम इस बात को जरूर देखें। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस के जो रहनुमाहान हैं, उनका बाकियों के साथ मिल बैठना, रफाकत रखना, दुआ करना महाल है। खा वो प्रोटेस्टेंट है या जो भी। हमें इन बातों पर सोचना है कि बाज़ औक़ात हमारे अपने जो पेटीवाल होते हैं, उनमें हम दूसरों की बदबुरियां करते रहते हैं, लेकिन कब हम दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे जैसे खुदा ने मुझे और आपको एक्सेप्ट किया है। और फिर आखिरी आयत यानी 17, कैसे सजा मिली उन नाफरमानों को जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की। सो जमीन फटी और दातन को निगल गई और अबीराम की जमात को खा गई। जरा सोचना है इस बात को कि क्या वजह थी कि ऐसा हुआ। खुदा के हुजूर जो काहिन का काम था, उस काम को खुद अपने हाथ में लेने के साथ साथ और भी बहुत कुछ जो कुछ यहां हम देखते हैं। एक रेफरेंस में आपकी खिदमत में चलते चलते इख्तिताम पर तलावत करता ही चलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वही जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, गिनती की किताब 16 बाब और उसकी 31 आयत से। उसने ये बातें खत्म ही की थी कि जमीन उनके पांव तले फट गई और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कोरा के हां के सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को निगल गई। सो वो और उसका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गया और जमीन उनके ऊपर बराबर हो गई और वो जमात में से नाबूद हो गए। और सब इस्राएली जो उनके आस पास थे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं जमीन हमको भी निगल ना ले। और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को जिन्होंने बखूर गुजराना था भस्म कर डाला। खुदा के खुदाम मूसा और हारून के बरखिलाफ चंद लोगों ने 250 के करीब लोगों की जमात खड़ी की और वो करने लगे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं था और उनका काम नहीं था और जमीन फटी और उनको खा गई। मैं और आप क्या चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या करे? मेरे अजीजों, मुझसे और आपसे खुदाबंद खुदा
आज मुकम्मल तौर पर वफादारी और फर्माबरदारी का तकाजा करता है। खुदावन मुझसे और आपसे यह चाहता है कि हम अपने खुदावन की फर्माबरदारी में अपना जीवन बसर करते चलें और वो करें जो खुदावंद की मर्जी के ऐन मुताबिक हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। मैं छोटी सी आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और अपने आप के लिए भी। कादिर मुतलक खुदा, हमने इस आईने में अपनी सूरत देखी और हम कम निकले। हमें अपनी फर्माबरदारी में हो लेने का फजल अनायत फरमाए और आपके एहसानात को हम कभी ना भूलें। और खुदावन, इस ऑनलाइन जमात में खा आपके लोग दुनिया के किसी कोना करिया में हैं, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। जो बीमार हैं उनको शिफा बख्शिए, जो किसी ना उम्मीदी की दलदल में है उनकी उम्मीद भर आए, जो अपने हालात के एतबार से अब्रे सिया में गुमशुदा हैं उनके लिए उम्मीद की एक किरण ताले हो जाए। जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनके लिए आप बियाबान में राहें तैयार करें ताकि आपका जलाल हमारी जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। मसीह खुदावंद के जलाली और मुबारक तरीन नाम के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे बशर्ते के खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।